Okay. Good morning, students. Welcome to the online classes. So we were doing the chapter number 14, electric currents and its effects. In this chapter, what we were undergoing through what are the electric current, what are insulators, what are conductors, what are the testers, what is electroplating. Clear? So what is electric current? The flow of ions is known as electric current. Clear? Next. Yes, ma'am. What are conductors? Conductors are the material which conduct electricity, which are the good conductor of electricities like iron, copper, aluminium, human body, etc. These materials conduct electricity. Why they conduct electricity? How they conduct electricity? Any object which conduct electricity should have a free ions. When those free ions are available in that object, then only the electricity flow through those ions. If the object is completely, its combination, its chemical equation is complete, no free ions are available, then there is no conduction of electricity. Understood? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Next, what are the insulators or a bad conductor of electricity, or what are the bad conductors? Bad conductors are those objects which do not conduct electricity, means those objects which don't have the free ions, like wood, plastic, rubber. They don't have a free ions through which the electricity or photons can move. Clear? Yes, ma'am. Answer, at least say yes, everyone. Yes, Put ma'am. on your Yes, hands, ma'am. say yes. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Since you have undergone through this chapter, so I am going through a quick revision. If any questions, you can ask me in between also. And we are going for a quick revision also. Clear? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. There are some materials which conduct electricity under specific condition. What does this mean? What does this mean? There are some materials which conduct electricity under specific condition. What does this mean? How can you explain this sentence? As we are saying, wood is a bad conductor of electricity, isn't it? Yes. Wood is a bad conductor of electricity. We always say wood is a bad conductor of electricity. Wood does not conduct electricity. Correct? Yes, ma'am. Correct or not? Yes, ma'am. Correct. Correct. It is correct. But when it is a thunderstorm or a lightning, जब बारिश हो रही होती है, lightning हो रही होती है, thunderstorm होता है, तो हमें कहा जाता है कि पेड़ के नीचे मत खड़े हो. पेड़ के नीचे खड़े होगे तो बिजली गिरेगी. बोलते हैं? Yes, ma'am. बोलते Yes, हैं? ma'am. Yes, अगर ma'am. पेड़ जो है वो वुड से वुड ही तो है. वुड का सोर्स क्या है? पेड़. तो जब वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और अगर हम उसके नीचे खड़े होते हैं तो हमें थंडर स्ट्रोक क्यों लगता है? बिजली क्यों गिरती है? आंसर आप लोगों को समझ में आया ना? मैंने आप लोगों को बोला था आप इस चैप्टर के थ्रू जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. तो जो अब मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो. जब हम कहते हैं कि वुड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें शॉक क्यों लगता है? क्यों लगता है? आंसर अच्छा, वाटर तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ या ना? Yes, ma'am. ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, हाँ या ना? Yes, ma'am. एयर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ या ना?
एयर में ma'am. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हाँ या ना? No, ma'am. क्यों? तो ये थंडरस्टॉर्म्स कहाँ से आते हैं? एनवायरमेंट में क्या होता है? एयर ही तो है। जो लाइटनिंग होती है तो वो वहां से नीचे तक कैसे कंडक्ट करती है? एयर के थ्रू ही कंडक्ट करती है। तो Yes, एयर ma'am. कंडक्टर है या नहीं है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. है। तो जब हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो जो कंडक्टिविटी है तो वो उसे एक पैसेज मिल जाता है, उसके आयंस को फ्लो होने के लिए एक पैसेज मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो वहां पर एयर भी है, वहां पर वाटर भी है, और जो पेड़ है वो उसमें वाटर कंटेंट होता है। लेकिन जो चीजें बनती है, अगर स्टूल बन रहा है, कबर्ड बन रहा है, किसी यूटेंसिल का जो हैंडल बन रहा है, वो जो वुड होती है वो ड्राई वुड होती है। लेकिन पेड़ों की जो वुड होती है वो वेट वुड होती है, उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो जब वाटर कंटेंट होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आयंस फ्लो होंगे या नहीं होंगे? Ma'am. बोलो। जब वाटर कंटेंट Yes, होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आयंस फ्लो होंगे या नहीं होंगे? Yes, ma'am. 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 तो सिंपल सा ही तो लॉजिक था, लॉजिक ही तो लगाना था। Yes, ma'am. तो फिर चैप्टर को रटो मत, समझने की कोशिश करो, लॉजिक लगाने की कोशिश करो। साइंस जो है मोस्टली लॉजिक पे डिपेंड करता है, वो कोई स्टोरी नहीं है कि जो जैसा है वो वैसा ही होगा। साइंस में हमेशा लॉजिक होता है या नहीं होता है? Yes, होता ma'am. है। Yes, तो ma'am. फिर होता है. नेक्स्ट, तो ये यही चीज है जो अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस जो बैड कंडक्टर्स हैं वो भी गुड कंडक्टर के जैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल टेस्टर। व्हाट डज द वर्ड मींस इलेक्ट्रिकल टेस्टर? इलेक्ट्रिकल टेस्टर से आपको क्या समझ में आता है? एनीवन? मैम जो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करता है, मतलब आ रही कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं। को टेस्ट करता है, कैसे टेस्ट करता है? मैम जैसे कि जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, उसमें टेस्ट करते हैं जब लाइट आपके लगती है उसमें। सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही नहीं है? हो रही है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उस पे एक बल्ब लगा होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है टेस्टर? कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर्स क्या होते हैं? जिसमें करंट हो। इसमें बल्ब लगा हुआ होता है, वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर होते हैं। लेकिन जो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एलईडी इलेक्ट्रिक टेस्टर। जो एलईडी इलेक्ट्रिक टेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर में और एलईडी इलेक्ट्रिक टेस्टर्स में डिफरेंस क्या होता है? हु इज गोइंग टू आंसर? शो मी योर फेस एंड आंसर फास्ट। आई डोंट हैव मच टाइम। फास्ट। Who's going to answer? What is the difference between conventional electric testers and LED electric testers? मैम एलईडी में अपन कम वोल्टेज का Show me your face first. So at least I should know who's answering. Fast. Switch on your camera, beta. मैम कन्वेंशनल में अपन हाई वोल्टेज का देखते हैं। कन्वेंशनल में हाई वोल्टेज टेस्ट होता है और एलईडी में कम वोल्टेज का। कम वोल्टेज टेस्ट होता है। गुड। नेक्स्ट एक और टेस्टर होता है जो कि है मैग्नेटिक कंपास टेस्टर। इसमें क्या होता है? इसमें जो तार होता है, ये पहले एक जो फिलामेंट होता है वो दूसरे सेल से जुड़ा जब होता है। इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगा तो इस कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। दिस मच इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैग्नेटिक कंपास। यानी कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ये कहाँ पर यूज होता है? अगेन वेयर वी यूज द मैग्नेटिक कंपास टेस्टर? ये ना व्हील के जो चक्के होते हैं उसमें, व्हील्स में। वीक करंट्स जहां पर होते हैं, जहां पर आपका वीक करंट्स होगा वहां पर इसका यूज होगा। Yes. Okay, so now how do we test whether the liquid is or the available liquid is a good conductor or a bad conductor? कोई भी सॉल्यूशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? कैन एनीवन Iron एक्सप्लेन? की 2 प्लेट्स लेके, हम्म, आयरन की 2 प्लेट्स लेके जो बीच में हम दो को रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर उसमें जो होगा वो हम देखेंगे कि गुड है या बैड है। नहीं, अगर आप एक बल्ब सॉल्यूशन ऑन ले हुआ- रहे हैं जिसको आपको टेस्ट करना है, आपने उसको टेस्टर उस सॉल्यूशन को बीकर में लिया, उससे आपने अपने सर्किट को कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? कोई वायर लिया, कोई रॉड ली, कोई प्लेट्स ली, जिसको आपने उसमें इमर्स किया और उसको आपने अपने सोर्स से कनेक्ट किया, वेदर इट इज अ बैटरी और अ पावर सोर्स। जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से आप अपना टेस्टर कनेक्ट करेंगे। तो जब आप इसमें पावर फ्लो करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पे जो टेस्टर है, वो जो बल्ब है, आइदर वेदर इट इज अ कन्वेंशनल बल्ब, इट्स अ मैग्नेटिक टेस्टर और इट इज अ एलईडी टेस्टर, तो वो बल्ब लाइटन अप होगा अगर वो गुड कंडक्टर है। तो वो गुड कंडक्टर है। ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जब वो कंडक्शन हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो आप उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक तो बल्ब लाइटन अप होगा, और क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? उसमें वो गुड बबल्स आएंगे। कंडक्टर। उस रॉड के ऊपर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, उस पे बबल्स होंगे। बबल्स Yes. होंगे। वो बबल्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं? फ्री आयन। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स को और फोटॉन्स को जब ट्रांसफर करते हैं, वो जो बबल्स होते हैं वो उस सॉल्यूशन के फ्री आयंस हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, उनको कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर? मैम। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes, ma'am. I'll see, I have a record who all are present in online classes. So by the Yes, most ma'am. fortunately, your classes will be resuming by 10th. Yes, ma'am. So when you come to the school, when you are coming to the school, I'm going to conduct a class test. Yes, Right? ma'am. So be prepared for the test. Okay, Fine. ma'am. Okay. Now, what is electroplating? Electroplating क्या होती है? प्लेट होती है, उसमें हम जो हमारे बीकर में जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें हम 2 प्लेट रॉड डाल के और हम वो देखते हैं। तो हम कर रहे हैं, प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? व्हाट एक इज द metal की डेफिनेशन ma'am ऑफ layer- इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? किसी मेटल का या किसी और मेटल का उस मेटल पे डिपोजिशन करवाना, उसकी कोटिंग करवानी, जो कि उसको लस्ट्रस और शाइनी अपीयरेंस दे, उस मेटल को लस्ट्रस और शाइनी अपीयरेंस दे, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रिक फ्लो के थ्रू किसी मेटल को आप ट्रीट करते हैं किसी और मेटल से, ताकि वो उस मेटल को शाइनी अपीयरेंस देता है। यानी कि यूटेंसिल्स है, जो यूटेंसिल्स है वो स्टील के जब होते हैं, जब नए होते हैं तो उनपे शाइनी अपीयरेंस होती है। बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, एनीथिंग जो भी है, जब वो नया होता है तो उस पे एक शाइनी अपीयरेंस होती है। लेकिन एज वी आर यूजिंग इट, रीयूजिंग इट, उसकी शाइनी अपीयरेंस हट जाती है। यानी उसकी वो उस वक्त
जब वो न्यू होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई होती है किसी और मटेरियल की, किसी और मेटल की, जो उसे शाइनी और लस्ट्रस अपीयरेंस देता है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now what is the process of electroplating? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस में जो आप बोल रहे थे वो ये होता है, आप एक बीकर लेंगे, उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्यों? और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करेंगे? Sulfuric एसिड। तो उससे क्या होगा? आप ये दो कॉपर की प्लेट्स लेंगे, उसको आप उसमें इमर्ज करेंगे, आपका सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये जो आपकी कॉपर की जो प्लेट्स हैं, कॉपर की ही प्लेट्स हैं। Yes, ma'am. फिर आपने इसमें सॉल्यूशन कौन सा लिया? कॉपर सल्फेट। सल्फ्यूरिक और आपने इसमें और क्या ऐड किया? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका जो सल्फर है वो कॉपर के ऊपर जब डिपॉजिट होगा तो वो दूसरा मेटल है सल्फर। यस मैम। Yes, ma'am. सल्फर दूसरा मेटल है, कॉपर एक मेटल है। तो जब सल्फर का इसके ऊपर डिपोजिशन होगा तो वो सल्फर का जो डिपोजिशन है वो इसको शाइन देगा। शाइन देगा, वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे और फॉर 15 मिनट्स एंड आफ्टर 15 मिनट्स व्हेन वी विल ऑब्जर्व दीज प्लेट्स, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है उसका डिपोजिशन इन प्लेट्स के ऊपर हो जाएगा और वो डिपोजिशन होने की वजह से इसमें एक शाइन और लस्ट्रस अपीयरेंस आएगा। आया? तो वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल से ट्रीट करना इलेक्ट्रिकली। इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उसको एक शाइनी और लस्ट्रस अपीयरेंस दे रहा है। दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? नो मैम। No, ma'am. Okay, very good. Now, our time is running out. So we'll finish the class over here. I'll send what I have taught today. I'll upload this video and send to you. Go through this video and re-prepare on 10th. 10th Feb. Don't be absent. If you be absent, there is no problem for me. Again, when the strength will be full, I'll conduct a test. That will be a surprise test. यस मैम। Okay? Yes, now, ma'am. tomorrow, one more day is remaining. So, we'll finish with our chapter number 14. No, 15. Ma'am, Which chapter is next? आप ऑरली टेस्ट लोगे ना? हाँ? आप ऑरली टेस्ट लोगे ना? हाँ, ओरल नहीं लूंगी, ओके मैम। रिटर्न नहीं लूंगी। रिटर्न लेने में मैं एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं देख सकती, मैं ओरली, ताकि मुझे सब लोगों की परफॉर्मेंस दिखे। यस मैम। ओके? जो भी Okay, होंगे ma'am. मोस्टली मैं एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछूंगी आप लोगों से, ताकि आप लोग मुझे फटाफट आंसर कर सको। Okay, ma'am. ओके? ओके मैम। ओके, Yes, ma'am. फाइन देन। Ma'am. हाँ? Any questions?